Hello friends. So in today's discussion, we'll start UP regulations. We have already dealt with the Police Act. Now we'll deal with the state specific regulation which is there concerning the matters of the police force. That is the UP police regulation. यूपी पुलिस एक्ट में जो पुलिस एक्ट है उसमें तो आपको पता है लिमिटेड सेक्शंस हैं, लिमिटेड स्टेट अमेंडमेंट्स हैं. उस पर आपको ध्यान रखना है सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट जहां अंदर इंग्रेडिएंट याद करना है वो चीज़ आपको पता चल गई. और लिमिटेड सेक्शंस है, सेक्शन नंबर याद करना है. डायरेक्ट सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अंदर के इंग्रेडिएंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा घुमा सकता है. जनरल ओवरव्यू ऑफ द एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है. सो ये हो गया. नाउ एज फार एज द यूपी police regulation is concerned, we have to understand that it is quite lengthy. 554 पैरा है. अभी हम लोग जनरल ओवरव्यू देखेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशन का. रेगुलेशन क्या है? फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैटर्स ऑफ द पुलिस द स्टेट हैज स्पेसिफिक रेगुलेशन. इसको लॉ भी माना जाता है. पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, सुपीरियर ऑफिसर्स की, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की, all the finer details. The act provides you the rules, the powers, duties, everything in a skeletal form. Regulations goes on with the further details. To the skeletal details, it goes on to give specific guidelines. It adds muscles to the broad skeletal system which is provided by the Police Act. Different superior officers which are there, what is their power, what are their duties. Okay. And then in that context, also it goes on to lay down certain other matters, how the investigation has to be done. Various parts are there, training, rewards, punishment. All these finer details have been comprehensively dealt under the UP police regulations. As far as the broad framework of this act is concerned, you have to remember the act has been divided in 4 parts. 4 पार्ट में डिवाइडेड है एक्ट. पहले पार्ट में आपके 9 चैप्टर हैं, तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 37 चैप्टर्स में है. पहले पार्ट में 9 चैप्टर. दूसरे पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका, उसमें 19 चैप्टर्स आपको मिलेंगे. थर्ड पार्ट में आपको 6 चैप्टर हैं, और लास्ट वाले पार्ट में 3 चैप्टर हैं, छोटा वाला लास्ट. सो एक्ट दिस रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 37 चैप्टर्स and 554 पैराग्राफ्स. पर्टिकुलर अगर कोई पैरा पूछ ले तो ये तो चलो थ्रू रोट लर्निंग यू विल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पैराज यू विल ट्राई टू रिमेंबर. Broadly they can ask you from which para to which para this chapter has been dealt under. Okay, so chapters you have to remember which chapters are there, and that chapters entails which of the following paras. Parts are easy to remember, only 4 parts are there, and in these 4 parts there are different chapters, and entire regulation has been laid down in 554 paragraphs. So यहाँ section वगैरह नहीं है, paragraphs हैं. Okay, then 5 appendices are there. And in this UP police regulations, certain paras have been removed, certain paras have been omitted, deleted, and certain new paras have been accordingly added as well. So 27 paras have been in all, they have been deleted. And 15 para have been added also, so it will make around 542 currently paragraphs are there in this police regulation. Now, as I have already stated, that this UP police regulation is divided in 4 parts.
व्हाट आर दीज 4 पार्ट्स? पहला पार्ट जो है आपका पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर से डील करता है। दूसरा पार्ट आपका पर्टिकुलर ड्यूटी बताता है। तीसरा पार्ट आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और चौथा पार्ट आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ट्रेनिंग हो गया पार्ट नंबर 4, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 3, particular duties have been laid down in part number 2, and the first part deals with the powers and duties of the officers. In part 1 you have 9 chapters, मतलब chapter 1 से 9। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। chapter 1 deals with the superior officers, DGP, IG zone, AIG. Superior officers have been dealt under chapter 1. All the superior officers that we had discussed in the previous class, all have been dealt under chapter 1. Para 1 to para 17 deals with superior officers. Then reserve inspector, RI जिसको बोलते हैं, and reserve sub inspector, रिजर्व लाइन पे काम करते हैं लोग, चैप्टर 2 में दिया हुआ है 18 to 24। पैरा नंबर 18 to 24 deals with reserve inspector and reserve sub inspector. Then chapter 3 deals with the public prosecutor and their subordinates. ये 25 to 39 था पैरा नंबर, डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, चैप्टर 3 में जो पैराज हैं that have been deleted. Then chapter 4 deals with circle inspector 40 to 42. Chapter 5 deals with sub inspector and under officers of the civil police, para number 43 to 64. Chapter 6 deals with armed police, आर्म्ड पुलिस के रिस्पेक्ट में क्या है, कहाँ उनकी स्टेशन किया जा सकता है, कैसे उनका रिक्विजिशन लिया जा सकता है, दैट हैज बीन डेल्ड अंडर चैप्टर 6. पैरा नंबर 65 to 72 deals with armed police. Armed training reserve, chapter number 7, para number 73 to 78. Then chapter 8 deals with mounted police. माउंटेड पुलिस क्या होती है, क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्या पावर है उनकी, पैरा नंबर 79 to 88, ये याद रखिएगा। माउंटेड पुलिस 79 to 88, आर्म्ड पुलिस 65 to 72, सुपीरियर ऑफिसर 1 to 17, आरआई वगैरह जो है 18 to 24 है। एंड देन विलेज पुलिस इज द लास्ट चैप्टर इन पार्ट नंबर 1, from para number 89 to para number 96A. Okay, so this is about part 1 of the UP police regulation that you have to keep in mind. Moving ahead, part 2 is there, which deals with particular duties, how the report is going to be made, how the investigation, how the inquests are going to be made, provisions regarding arrest, custody, special crimes, criminal tribes, how they have to be dealt, patrol, picket, special guard, absconded offenders, very important section which is there, often questions have been asked. Then registration and surveillance of bad character, history sheeter, उसकी लिस्ट कैसे बनेगी, गैंग जो डकैत हैं, गैंग्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में कैसे बनेगा, execution of process, confidential documents, accounts, Indian state, delete हो गया ये, reporting and registration of birth and death, direction for the guidance of police officer in the time of famine, all these matters, duties under the special act and miscellaneous, all these matters have been dealt under part number 2. All these matters are basically the particular duties. Particular duties, chapter number 10 to chapter number 28. Part 2, which deals with particular duties, have been dealt from chapters 10 to 28. Chapter 10 क्या है, पुलिस स्टेशन पे जो रिपोर्ट हुई वो कैसे, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में क्या ड्यूटीज हैं, पैरा नंबर 97 to 103. इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो अफसर इंचार्ज है
उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, उसकी क्या ड्यूटी है। पैरा नंबर 104 टू पैरा नंबर 128, चैप्टर नंबर 11 डील्स विद इन्वेस्टिगेशन। 104 से 128 इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। देन चैप्टर 12 deals with inquest, post-mortem examination, treatment of wounded person. Para number 129 to 146. Arrest, bail and custody. Chapter number 13, para number 147 to 164. Then chapter 14 is there, custody and disposal of property, para number 165 to 173. Special crimes, chapter 15. Criminal trial, foreigners and vagrants, chapter 16. Patrol and picket. I'll share this slide with you in which this broad title has been displayed. From which para to which para, from which chapter deals with which thing, it comes under which part. I'll share this. Important in this is certain chapters are really very important. Chapter number 10, reports made at the police station. Then chapter 11 also is important, deals with the investigation. Chapter 12 deals with the inquest. Arrest, bail, custody is also there. Special crime, custody and disposal of property. We'll try to finish until chapter 14 or 15 to dates. Criminal trials, foreigners, vagrants, patrol and picket, special guard and additional police, 196 to 214. Absconded offenders, chapter 19. Restoration and surveillance of bad character, chapter 20. 19 and 20 is also very important. Absconded offenders have been dealt under para number 215 to 222, and surveillance of bad character, this have been provided under para number 223 to 276, chapter 20. 19 or 20 ये भी important है. Execution of process, record and confidential document, अकाउंट्स, इंडियन स्टेट, इसमें जो पैरा है 309 से 321 डिलीट कर दिया गया है. देन रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, चैप्टर 15. चैप्टर 16 डील्स विद डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर इन टाइम ऑफ फेमाइन. फेमाइन जब होता है, फूड शॉर्टेज, उसके रिस्पेक्ट में पुलिस ऑफिसर को क्या गाइडेंस है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं. पैरा नंबर 328 टू 337 dealt with in chapter 26. Then you have 27 duties under special act. Then miscellaneous, chapter 28. So chapter 10 to 28 deals with part number 2, which deals with particular duties of a police officer. Okay. अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे. पार्ट 3 deals with internal administration, appointment, promotion, reward, department proceedings, punishments, transfers. All these matters have been dealt under part 3, which deals with internal administration. Chapter 29 to chapter 34. Para number 396 to 526. अपॉइंटमेंट वाला मैटर अगर आप देखोगे 396 to 427 पैरा में दिया हुआ है. Chapter 29. Chapter 30 deals with promotion. Chapter 31 deals with rewards, departmental punishment and criminal prosecution of police officer. Important. This one is important. Chapter 32, para number 477 to 507A. Then you have appeal, revision, petition and copies of official documents in chapter number 33. And then chapter number 34 deals with transfer. Para number 520 to 526. This is also very important. 520 to 526 deals with transfers. Accordingly, it has been provided under chapter 34. Then you have the last part which deals with the training. Training of gazetted officers, training of non-gazetted officers, training of SI, that is there, head constable and constable. These have been dealt under 3 chapters, 3 headings which is there. Part number 4 deals with training. Chapter 35 to 37. So 37 chapters are here, therein. Gazetted officer, inspector and reserve sub-inspector, 527 to 533. Then you have 534 to 538,
which deals with training of sub-inspector. Then chapter 37 deals with training of head constable and constable. So this is the broad outline of the UP police regulation. Now we'll start with the regulation in detail, and we'll quickly try to finish these regulations. In the end of the day, I will quickly keep on highlighting, since it's a lengthy regulation. You have 554 paras, more than 300 pages are there. So smart work you can do, you can pick out these important areas which are there in the regulation. You can keep these relevant paras, these broad outline in your mind. Many a times they'll simply ask question based on paras, based on the chapters, based on the parts, based on the broad outline of this regulation. They can simply ask question in that regard, and then you have to keep all these things in mind. Okay. So सीधा पैरा नंबर 1 से शुरू करते हैं. और जल्दी जल्दी इसको कोशिश करेंगे 2 क्लास में फिनिश कर दिया जाए यूपी पुलिस रेगुलेशन को. ओके. फाइव 54 पैरा है, ये आपको याद रखना है. कौन से पैरा रिपील हो गए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ऐसे आपको इस ध्यान में रख के इसको आपको याद करना होगा. 5 अपेंडिक्स है, 4 पार्ट्स हैं, 37 चैप्टर्स हैं, 554 पैराज हैं. पहला जो पार्ट है, it deals with powers and duties of officers. In that we have first chapter which deals with superior officers. In that the broad hierarchy we had already covered. कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर आपका डीवाईएसपी, फिर आपका एसपी, फिर उसके ऊपर आपका डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनमें सबसे ऊपर आता है, डीजीपी. सो ये ब्रॉड हायरार्की हमने देख लिया था. डीवाईएसपी तक सुपीरियर ऑफिसर्स आते हैं, गैजेटेड होते हैं. उनके नीचे जो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, these are non-gazetted. So when we come to Director General of Police, para number 1 states that what is the power and status of Inspector General cum Director General of Police. So we already understand that he is the head of the police department in the General Police District, and he is the advisor to the governor. So head of the police department कौन होता है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. और जो भी गवर्नर से करस्पॉन्डेंस है, all the correspondence goes through the Director General himself and by no other officer. As a matter of administrative routine, he is also concerned with the gazetted officers. Gazetted officer से concerned कौन रहता है? Gazetted officer का के ऊपर जो है administrative control is exercised by the Director General. And with respect to the non-gazetted staff, the general administrative control lies with the DIG. SP के ऊपर DIG, फिर IG, IG के ऊपर आपका DG, ADG भी होता है बीच में. So broad outline यही है. As a matter of administrative routine, he is concerned with the gazetted officers, the general allocation of staff and general distribution of fund. Complete responsibility in regard to the non-gazetted officer being delegated to the Deputy Inspector General. Okay, so this is there. Director General of Police, हमें पता है पैरा नंबर 1 में, इसमें जो है ब्रॉड आउटलाइन आपका दिया हुआ है कि हेड ऑफ द पुलिस जो है वही होता है. तो ये मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये सबसे ऊपर आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टर जनरल सर्टेन अदर, जो सीनियर मोस्ट होता है डायरेक्टर जनरल में, उनको मेन हेड बनाया जाता है. बाकी जो है सेम जो रैंक में आते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है. होम गार्ड हो गया, आवास निगम, फायर सर्विस, ट्रेनिंग, प्रोसिक्यूशन, सीआईडी, पुलिस एकेडमी. देन उसके बाद आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल आते हैं, इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. पीएसी, लॉ एंड ऑर्डर, एंटी करप्शन,
ऐसा कर करके 21 जो है अलग अलग पोस्ट हैं एडीजी की. देन यू हैव आईजी जोन. Different zones are there in the state of Uttar Pradesh. It comprises many districts. It is headed by the Inspector General. Then you have Inspector General for PAC, that is there. Inspector General of Railway, that is also there. So ये कुछ नई नई पोस्ट जो है ये आपके ऊपर ऐड की गई हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में. इसके बाद अब आप देखोगे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल या फिर आईजी जोन, इनकी क्या है पावर एंड ड्यूटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल पैरा 1A. So additional inspector general is in charge of and supervising officer of the region under them. IG zone होता है ना, IG zonal inspector general. जो भी उनका रीजन है उसके सुपरवाइजिंग ऑफिसर ये होते हैं AIG या IG जोन. एंड दे गिव अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द DIGs विच आर देयर. DIG की रेंज होती है, उसके ऊपर IG होता है. सो जो भी एरिया इनके अंडर आता है, जो भी जोन में इनके एरिया आता है, with respect to that area they are the supervising officer, they are the in charge of that region that comes under them. And their duty and powers with respect to employing officers have been specifically provided under para 1A. It deals with transfer of non-gazetted officers, disposing of the proceedings, appeal, revision, petition, granting casual leave to the gazetted officers, and also making available their opinion whenever it is required to the IG for annual entries and such other work as may be entrusted to them by the administration or IG. So ये हो गया IG जोन के रिस्पेक्ट में क्या पावर्स एंड ड्यूटीज हैं. IG हो गया. उसके नीचे अब आप आ जाओगे DIG. Power and responsibility of DIG has been dealt under para number 2. He is in charge of the ranges of the district. डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रेंज है उनकी, द जनरल person who is in charge with the range within the district, ranges of the district have been under the control of Deputy Inspector General. For efficiency in their respective range, the IG concerned is held responsible. He stays in close touch with the superintendents which are there in that relevant districts. और superintendents report करते हैं आपका DIG को. He stays in close touch with the superintendents. He inspects the work of the superintendents of police. डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसके ऊपर आपका DIG होता है, उसके ऊपर IG जोन होता है, फिर उसके ऊपर आपका DG. So all those superintendents which are within their range, they are required to inspect their work, they are required to perform supervisory role. They are also required to inspect the work of the superintendent at least once a year, and accordingly he prepares a inspection report. Okay, in the form that has been prescribed under this regulation. ये हो गया जनरल उसका पावर, एक्सटेंट और ड्यूटी. ड्यूटी ऑफ DIG इन हिज रेंज. ड्यूटी क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सुपरविजन ऑफ क्राइम विद इन हिज रेंज. उसके रेंज में जो भी क्राइम हो रहा है उसके ऊपर जनरल सुपरविजन DIG का है, और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट भी वो बनाता है, रजिस्टर एक रखता है, और उस रजिस्टर में उसके रेंज में जो भी ऑफेंस पर्टिकुलरली इसमें मेंशन्ड है, जैसे डकॉयटी, मर्डर, रॉबरी, पॉइजनिंग, मिसलेनियस केसेस, उसका एक रजिस्टर देता है, और फोर्टनाइटली वो रजिस्टर जो है IG को जो है उसे सबमिट करना पड़ता है, रिपोर्ट देना होता है IG को रजिस्टर मेंटेन करके. He will forward to the Inspector General such special reports also in exceptional cases. Superintendents must report directly to the IG as well as the DIG.
in matters which are very specifically that are important. The DIG will be the channel through which the Inspector General will receive the information. So he also acts as a channel. स्पेसिफिकली मैटर्स में डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट आईजी को भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन जनरली आप देखोगे तो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ओके, बिटवीन द आईजी एंड द सुपरिटेंडेंट्स. द डीआईजी ऑफ पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये कुछ अलग पोस्ट हैं, यहां भी था, उनकी भी पावर्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड है. डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये पैरा 4 में आपको दिया है. ट्रेनिंग वाला एक है, फिर रेलवे पुलिस वाला है. रेलवे पुलिस में वो पावर एंड ड्यूटी इन रिगार्ड टू द रेलवे पुलिस लाइज इन द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल फॉर द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ओके. देन यू हैव कमिश्नर given under para 5. It includes collector, deputy commissioner, who is in charge of the division. Just a second. जो भी डिवीजन के इंचार्ज हैं, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, वो इंक्लूड करता है कमिश्नर में. कमिश्नर का क्या है, जो डिवीजन में जो भी जनरल पावर ऑफ सुपरविजन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, वो कमिश्नर के ऊपर आती है. जिले में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिले में आपका एसपी है, उसके ऊपर आपका जो है डीआईजी, आईजी, ऐसे करके ये पुलिस डिपार्टमेंट में चलता है. रेवेन्यू मैटर में, अदर मैटर में, एग्जीक्यूटिव मैटर में, लॉ एंड ऑर्डर का जनरल पुलिस से हटा के जनरली जो हेड है वो डीएम होता है, डीएम के ऊपर आपका कमिश्नर होता है. सो जनरल पावर ऑफ सुपरविजन इज एक्सरसाइज्ड बाय the commissioner over the district magistrates which are there in his respective division, okay. Para number 5. Then para number 6 deals with the powers of the DM of the district. DM is the head of the criminal administration of the district. He controls and directs the actions of the police. His approval is necessary for the transfer of inspector, officers in charge of the police station. He may also recommend the rewards which are there. So this is one of the important powers of the district magistrate which is there in the district, and it has been provided in para number 6. Heading the criminal administration, and also when he is heading the criminal administration, in due regard he is controlling and directing the actions of police as well. Then general powers with respect to transfer and officers in charge of the police station, recommending rewards. Then para 7 deals with information to the district magistrate of all serious crimes and of all sudden increase in volume of crime. कभी सुपरिटेंडेंट को पता चले कि सडनली क्राइम बढ़ रहे हैं, या फिर अगर कोई क्राइम है वो सीरियस नेचर का है, तो इमीडिएटली सुपरिटेंडेंट हैज टू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट in that regard. Superintendent should keep the magistrate informed of all events that are important from the police point of view to the DM. And he should frequently keep on seeking an opportunity where he can discuss these matters personally with them. Okay, so this has been given under para number 7. So DM जो है accordingly ये सारी information लेता है, और सुपरिटेंडेंट ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, इज ड्यूटी बाउंड. देन पैरा 7A डील्स विद द पावर्स ऑफ द डीएम टू आस्क द एसपी टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इन केस ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनएक्शन, करप्शन, हरासमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और wrongful detention. So DM can also ask the SP to institute inquiry in such case where there is supposedly any corruption, harassment and such matter as reflected under para 7A. If any member of the police force is found at fault as a result of inquiry, the DM shall have the power to ask the SP to take disciplinary action against him. जब इंक्वायरी के लिए पूछ सकता है, वो एलिगेशन आया, डीएम कह सकता है भाई इंक्वायरी करो, इंक्वायरी में पाया गया गिल्टी, द DM can ask the SP to take action. Then you have para 7B.
Whenever a situation likely to have bearing on the general law and order situation arises in the district, the SP will immediately inform the DM by the quickest means. Then instruction to the DM in the exercise of his power of control. DM in the exercise of his power of control should avoid doing anything to weaken the superintendent's authority. Para 8. भाई दोनों को मिल के काम करना है. डीएम ऐसा कोई काम नहीं करेगा, पैरा 8 में बताया है, जो एसपी की अथॉरिटी को वीकन करे. आपस में ही भिड़े पड़े हैं. ठीक है. इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बाय द डीएम. डीएम जो है, जो भी पुलिस स्टेशन आता है उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक बार तो एटलीस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मली इंस्पेक्ट करना ही होता है. दिस इज गिवन अंडर पैरा 9. इसको डेलीगेट भी कर सकता है एसडीएम को. ऑब्टेन सैंक्शन ऑफ द डीएम टू द एक्सपंक्शन ऑफ अ क्राइम फ्रॉम द क्राइम रजिस्टर. पैरा नंबर 10. सैंक्शन ऑफ द डीएम इज नेसेसरी. जो क्राइम रजिस्टर है, एक्सेप्ट रेलवे पुलिस केसेस, उसमें अगर कोई क्राइम को जो है एक्सपंज करना है तो डीएम का जो है सैंक्शन चाहिए होता है. पैरा 10. In the district in which collector deputy commissioner is collector in charge of the division, his functions under this paragraph will be exercised by the ADM. Para number 11, power of the superintendent in licensing and regulating prosecution. Para number 11. कोई भी जो है सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, उसकी क्या पावर है इन लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोसेशन. सो जो भी उनकी पावर मेंशन्ड है पुलिस एक्ट में, दैट पावर हैज टू बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. यहां भी आप देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर ऊपर आती है. असेंबली ऑफ प्रोसेशन में आपका बताया था ना, परमिशन लेनी पड़ती है. उनको लगेगा तो वो लाइसेंस के लिए कह सकते हैं, तो लाइसेंस के लिए बोलेंगे तो फी नहीं लेंगे. ये सारी चीज पुलिस एक्ट में दी हुई है. सो सुपरिटेंडेंट की जो भी पावर है उसके ऊपर जनरल कंट्रोल होता है डीएम का विद रिस्पेक्ट टू सच असेंबली एंड प्रोसेशंस व्हिच इज देयर. और जो भी रिलीजियस प्रोसेशन है, पब्लिक सेरेमनी है, मुहर्रम अगर मनाया गया है, मुहर्रम के लिए परमिशन ली गई है, तो उसका प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए. पुलिस को देखना है कि भाई प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर ऑर्डर, whether it is kept or not, whether no deviation from the route is it there. Any section or individual member of the community declined to carry out the procession or ceremony at the time and in the manner prescribed, they should be informed that they will not be allowed to carry them out after the prescribed time by any other route in any other manner. So this general power also is of the superintendent of police, and he has to exercise this power regarding the conduct of assembly, procession, public ceremony, public religious ceremony, subject to the general control of the DM. This has been covered under para number 11. Then you have superintendent of police. District में सबसे जो head होता है पुलिस का, head of the police force in the district. This has been given under para number 12. He must see that the orders of the court and other competent authorities are promptly carried out. कोर्ट का जो भी ऑर्डर है promptly फॉलो हो रहा है कि नहीं. All communication between magistrate and the police force must be through superintendent of police only. All instruction to the police must come through him. कोई और अथॉरिटी जाके आके पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सुपरिटेंडेंट की, पैरा नंबर 13 में दिया है. हेडक्वार्टर में है तो अपने ऑफिस को अटेंड करे. ही शुड बी रीडली एक्सेसिबल टू द पब्लिक. पैरा नंबर 13 में सब दिया हुआ है. पब्लिक को इंकरेज करे कि भाई आके मिलो, अपनी कहानी बताओ, अपनी व्यथा बताओ. ही शुड कीप इन टच विद द पुलिस पेंशनर्स. जो भी इस एरिया में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे टच में रहे, लोगों से टच में रहे. ऑफिस आए अपना, जो भी पुलिस स्टेशन है उसके अंडर उसका फुल इंस्पेक्शन करना,
ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसपी की। टूर करना, इंस्पेक्शन करना अपने जिले में। He should himself make full inspection of each police station at the district headquarter in accordance with the memorandum, if possible once a year. नहीं तो एटलीस्ट वंस जो है 3 साल में एक बार तो करना ही करना है। एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ रिजर्व लाइन, जुलाई 1 के बाद और कोल्ड वेदर के बीच में एक एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ द रिजर्व लाइन। The superintendent must make an annual inspection of his reserve line between July 1 and the cold weather inspection of a district by the DIG. In making this inspection, he should be guided by the headings of head fund of the DIG, police form number 327. So ये है personal attendance of the superintendent at yearly conference is very essential. So these are general responsibilities of the superintendent of police given under para number 13. Then para number 14, follow the directions contained in the MGO when a district officer giving over a charge of the district. Entries in the English order book. Entries of all cognizable crime at the police station in crime register. ये हो गया general of the superintendent of police. Then deputy superintendent of police, assistant superintendent of police. इसके रिस्पेक्ट में इनकी पावर एंड ड्यूटी कहाँ है? Para number 17. All of the duties which the superintendent assigns to them, assistant and deputy superintendent may perform all those duties, which he is not obliged by law or rule to do personally. They make inquiry, commission, they should go on tour. डेप्टी सुपरिटेंडेंट का क्या है? टूर करना, इंस्पेक्शन करना, सुपरिटेंडेंट जो काम देगा उसे करना, ये सब रूल पैरा नंबर 17 में दिया हुआ है। Their services should be used freely in supervision and direction of the important investigation. Assistant superintendent who is qualified for the charge of the district will hold the charge in the absence of the superintendent. Superintendent available नहीं है तो assistant superintendent charge लेगा। Where no gazette officer is present at the headquarters, superintendent should place in charge of his office one of the English knowing inspector at the headquarters. Other assistant superintendent, deputy superintendent who have been confirmed in their appointment are empowered under certain restrictions to perform their duties of superintendent under section 7 of the Police Act. Appointment, dismissal, suspension, reduction in rank, इसके respect में they can also perform that duty. 17 है आपका जो है सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सब हटा दिए गए हैं। Chapter 2 deals with RI and reserve सब इंस्पेक्टर। रिजर्व इंस्पेक्टर क्या होता है? चैप्टर 2 में बताया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी? रूल 18 में दिया है। ही इज द रिजर्व इंस्पेक्टर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लाइन, पुलिस लाइन जो है वहां पे। सो ही इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस रिजर्व लाइन। ही मस्ट टेल ऑफ एंड इंस्पेक्ट ऑल गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स। इंस्पेक्शन करता है जो गार्ड्स हैं, एस्कॉर्ट्स हैं, उनका जो है हाल खबर कौन लेगा? RI। जो भी उनका अटेंडेंस लेना है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो हैं उनका उनके ऊपर ये होता है रोल कॉल, रोस्टर, कॉल आउट, गार्ड्स, एस्कॉर्ट्स, प्रॉपर्टी, उसकी देखभाल, ये सारी चीज RI के अंडर आती है। ओके। ही शैल टेल ऑफ एंड इंस्पेक्ट ऑल गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट। ही शैल परेड एनी पार्टी ऑफ पुलिस अबाउट टू बी सेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। किट को देखना, किट का ध्यान रखना। ही शैल सी दैट द डेली रोल कॉल इज हेल्ड। ही मस्ट सी दैट द रोस्टर ऑफ ड्यूटीज इज करेक्टली मेंटेन्ड। सो दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड duties or powers of the RI. Mainly he is officer in charge of the reserve line. That is why he is stated as reserve inspector. He tells of and inspects the guards and escorts. He is bound to
conduct the daily roll call. He sees that the roster of duties is properly maintained. All these are some of the important functions that the RI has to perform. He has the responsibility regarding the safe custody of arms, ammunition and stores. रूल नंबर 19 में दिया है. RI की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आर्म्स है, एमिनेशन है, उसकी सेफ कस्टडी है कि नहीं. ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूट्स के रिस्पेक्ट में भी ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर पैरा 20. ड्यूटी ऑफ RI फॉर वीकली इंस्पेक्शन ऑफ द किट, एनुअल फायरिंग भी कराता है, वीकली इंस्पेक्शन ऑफ किट भी कराता है 21 में. इंस्पेक्शन ऑफ ऑल गार्ड्स एंड सेंट्रीज, गार्ड्स हैं जो सेंट्री ड्यूटी होती है, ये सारी चीजें. एम्प्लॉयमेंट ऑफ RI टू कमांड एस्कॉर्ट एंड गार्ड्स ऑन स्पेशल ओकेजन. कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, उसमें गार्ड हैं, एस्कॉर्ट हैं, उसको कौन कमांड करेगा? RI करेगा. ही मे बी एम्प्लॉयड टू कमांड एस्कॉर्ट एंड गार्ड्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. पैरा नंबर 23. ड्यूटी ऑफ रिजर्व सब इंस्पेक्टर, ये तो रिजर्व इंस्पेक्टर हो गया. तो जो रिजर्व इंस्पेक्टर को अपने काम में असिस्ट करने के लिए कुछ काम कराना है तो रिजर्व सब इंस्पेक्टर को वो डेलीगेट कर सकता है. ही मस्ट गिव टू द रिजर्व इंस्पेक्टर एनी असिस्टेंस. रिजर्व सब इंस्पेक्टर जो है रिजर्व इंस्पेक्टर को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसके काम में. एनी असिस्टेंस विच द RI may ask for, the reserve sub inspector has to assist him. Then chapter 3, which deals with public prosecutor and their subordinate, in that para number 25 to 39 has been omitted. Chapter 4 deals with circle inspector. Principal duties of the circle inspector given under para number 40. सर्कल इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी है? इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करना. 40 में दिया हुआ है. इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करता है, क्राइम को प्रिवेंट करता है. जो भी ऑफिसर्स उसके बिलो आते हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. सर्कल बाबू, सर्कल इंस्पेक्टर. ओके. जो भी ऑफिसर सबऑर्डिनेट हैं वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करना, क्राइम को रोकना, ये सारा सर्कल इंस्पेक्टर के आता है. क्राइम रजिस्टर अकॉर्डिंगली वो मेंटेन करता है. जो भी FIR कॉग्निजेबल क्राइम सब हुई उसमें करता है. उसके सर्कल में जितने भी थाने आते हैं उसका इंस्पेक्शन करना भी सर्कल इंस्पेक्टर का काम है. प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम, कोई अकरेंस हुई, कोई इंपॉर्टेंट क्राइम हुआ, वहां पे जाता है, ही गाइड्स द इन्वेस्टिगेशन इन दैट पर्टिकुलर क्राइम. मंथली सर्वे भी करता है, मंथली सर्वे ऑफ क्राइम ऑल्सो ही ड्रॉज दैट. Other duties of the circle inspector has been given under para 41. He keeps the superintendent informed of every occurrence within the circle. He takes command of the police force when that police force is employed to suppress any riot. He keeps a diary recording his movement. Confidential notebooks also recording notes. Suspect में diary भी रखता है. He inspects the shops under the Explosives Act and so on. He keeps the superintendent of police, which is above him, to inform of the conduct of all the subordinate police which are there. So ये हो गया para 41. Para 42, responsibilities given to the circle inspector by the inspector general. इंस्पेक्टर जनरल जो है IG, वो सर्कल इंस्पेक्टर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है. इसके रिस्पेक्ट में पैरा 42 में आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा हैं और IG को यह लगता है कि भाई जब पुलिस स्टेशन ज्यादा हैं तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो है एक ही सर्कल इंस्पेक्टर के ऊपर ठीक नहीं होगा. देन ही मे बी रिलीव्ड ऑफ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ली जा सकती है क्योंकि वो सर्कल बड़ा है, थाने उसमें ज्यादा है. So ये आपका पैरा 42 में दिया हुआ है और सर्टेन ड्यूटीज से उन्हें रिलीव किया जा सकता है. देन चैप्टर 5 डील्स विद SI, सब इंस्पेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द सिविल पुलिस.
SI पहले आप देख लो, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, पैरा 43. Officer in charge of the police station is basically the sub inspector. Within the limits of his conduct, he basically, within his limits of his charge, he conducts the police administration. He is responsible for, तो हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे रेंज से डिस्ट्रिक्ट से थाना, ऐसे ऐसे करते करते सबका जो है एरिया ऑफ वर्क जो है डिफाइंड होता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ ऑल्सो ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, सेफ कस्टडी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी. जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके वर्क को इंस्पेक्ट करना, उनको अंडर कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, प्रॉपर्टीज जो हैं कस्टडी में उसकी देखभाल करना. ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द sub inspector, officer in charge of the police station. Abilities of the officer in charge of the police station. Local knowledge के थ्रू अपने थाने के जो एरिया है उसमें और सारे लोकल नॉलेज उसको होनी चाहिए कि भाई क्या है, विलेज हेडमैन है तो उससे तमीज से बात करे. अपने एरिया में जो है जो भी ऐसे लोग हैं सस्पिशियस, संदिग्ध, उनके ऊपर जो है निगरानी रखता है. जो भी इंटेलिजेंस है उनको एफिशिएंटली कम्युनिकेट भी करता है टू सुपीरियर ऑफिसर्स. सो दीज आर द एबिलिटीज ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन गिवन इन पैरा 44. 45 डील्स विद कॉन्फिडेंशियल नोटबुक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज. एक कॉन्फिडेंशियल नोटबुक भी रखनी पड़ती है उसे. ड्यूटी क्या है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का? अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनका ड्रिल कराना, अपने कांस्टेबल को एग्जामिन करना, इंस्पेक्शन, जो किट की इंस्पेक्शन है, पुलिस की जो किट है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना. फायर आर्म्स, बायोनेट, पाउचेस, स्टोर्स एंड ऑल वेपन्स विच आर देयर एट द पुलिस स्टेशन, वो किसके पर्सनल चार्ज में होते हैं? थाने में जो भी वेपन, बायोनेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पर्सनल चार्ज में आता है सब. सो अकॉर्डिंगली उसका इंस्पेक्शन करना, उसकी प्रॉपर जो है मेंटेनेंस, ये सब आता है स्टेशन ऑफिसर के रिस्पेक्ट में. इट इज इन हिज पर्सनल चार्ज. पावर ऑफ द एसओ टू अलाउ हिज सबॉर्डिनेट टू गो ऑफ ड्यूटी, पैरा 47. मिसलेनियस इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ स्टेशन ऑफिसर, ये भी आपको दिया हुआ है 48 में. कोई डाक आया तो पर्सनली उसको ओपन करता है, जनरल डायरी को साइन करता है, मलखाना को डेली इंस्पेक्ट करता है. मलखाना क्या होता है भाई? जो भी थाने में जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई, जो भी प्रॉपर्टी है वो सेफ कस्टडी में रखी जाती है मलखाने में. एरिया जहां पे प्रॉपर्टी जो है सेफली रखी जाए, मलखाना. उसका डेली इंस्पेक्शन, मलखाने में ये सब सारी चीजें होती हैं. इसमें भी रूल होता है, सेंट्री ड्यूटी होनी चाहिए. अगर मलखाने में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो हमेशा वहाँ पे एक निगरानी किसी की होनी चाहिए. लेकिन अगर मलखाने में कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत कम है, तब रिलीफ भी क्या आ सकता है, जो भी गार्ड है उसको. नहीं तो अगर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रखी हुई मलखाने में, सब ऑफ ड्यूटी अपना घर चले गए, पता चला पुलिस स्टेशन में ही छापा पड़ गया गुंडों का. सो डिफिनीशन ऑफ ऑफिसर इन चार्ज, ये सब सारी चीज़ें हैं पैरा 49 में. ऑफिसर इन चार्ज ये है, इन्वेस्टिगेशन जनरली कंडक्ट कराता है. ये अगर अवेलेबल नहीं है तो कांस्टेबल के अबव भी दे सकता है, लेकिन वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे. चेंज सर्टिफिकेट ऑफ स्टेशन ऑफिसर, पैरा 50. सेकंड ऑफिसर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ही इज ऑल्सो अ सब इंस्पेक्टर. इनकी ड्यूटी क्या है? मतलब एक तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेकंड ऑफिसर, 51 अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकंड. ड्यूटीज ऑफ द सेकंड ऑफिसर, असेंबलिंग करना मॉर्निंग परेड में, सबऑर्डिनेट को क्या ड्यूटी है जो एसओ ने बताया है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देता है सेकंड ऑफिसर. रिपोर्ट करता है ऑफिसर इंचार्ज को.
जो भी इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपरली हो रही है कि नहीं उसकी रिपोर्ट देता है ऑफिसर इंचार्ज को, ड्रिल करता है पुलिस को, और जो भी ऑफिसर इंचार्ज ने ऑर्डर दिया उसके ऑर्डर को ओबे करता है। 51 पैरा में दिया हुआ। सेकंड ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो उससे उससे जूनियर जो मोस्ट है, सीनियर, वो परफॉर्म कर सकता है ड्यूटी। 52, 53, 54 डिलीट हो गया। हेड कांस्टेबल सेशन राइटर ऑफिस क्लर्क होता है, लिखत पढ़त का जो काम है 55 पैरा में दिया हुआ है। ड्यूटी ऑफ हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर, he is the record keeper, he is the accountant, he is the office clerk, writes the general diary, writes the FIR, maintains the vernacular cash book, brings every morning to the notice of the officer in charge all orders pending execution, keeps the books, keeps the records। कौन? पैरा नंबर 55 में दिया है हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर, उसकी ये सब ड्यूटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज मैंने आपको बता दी। पैरा 56, लिटरेट पुलिस ऑफिसर विल गिव असिस्टेंस टू द हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर। पैरा 57, हेड कांस्टेबल एज इन चार्ज ऑफ द स्टेशन। When head constable is in charge of the station and has to make investigation, he shall make over all his clerical duties, and if he leaves the station in charge next to the senior literate head constable or constable shall carry on the investigation। मतलब उनको अगर इन्वेस्टिगेशन करना जाने हैं तो ड्यूटी किसको दी जाएगी, ऐसे ये सब चीजें। हेड कांस्टेबल इन चार्ज ऑफ आउटपोस्ट। अब आउटपोस्ट के इंचार्ज जो हेड कांस्टेबल हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द हेड कांस्टेबल ऑफ एन आउटपोस्ट is responsible for orderly conduct and discipline of the constable under his charge. He immediately reports to whom? Inspection करता है daily break sunset पे। He shall be in constant communication with officer in charge of the police station, और कोई भी cognizable crime हुआ, important occurrence हुआ, immediately report करता है officer in charge को। Duties of an outpost, the sphere of action and the special duties of the police of each outpost will be determined by the officer in charge of the police station। कांस्टेबल आ गया। अब कांस्टेबल क्या है? कांस्टेबल जो है जनरली आर्म्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन। प्रिंसिपल ड्यूटी कांस्टेबल की क्या है? क्राइम को प्रिवेंट करना, कर्टियस होने चाहिए, कंसिडरेट होने चाहिए। ड्यूटीज ऑफ सेंट्री, सेंट्री मतलब क्या? गार्ड करना, ये सारी चीजें। ओके, सो ड्यूटीज ऑफ सेंट्री यू विल सी, दिन रात के लिए हमेशा जो है आपका सेंट्री होनी चाहिए। सेंट्री ड्यूटी, गार्डिंग द प्रिजनर्स, गार्डिंग द लॉकअप, गार्डिंग द प्रॉपर्टी विच इज देयर इन द स्टेशन, गार्डिंग द प्रॉपर्टी केप्ट इन द मलखाना। सो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है 62 पैरा के अकॉर्डिंग, पैरा नंबर 62 के अकॉर्डिंग सेंट्री ड्यूटी जो है एलोकेट करता रहता है सबको अपना टोकन वोकन दे के। अकॉर्डिंगली सेंट्री ड्यूटी जो है ये देता है। सेंट्री ड्यूटी 3 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, और रोटेशन वाइज जो है, रोस्टर वाइज ऑफिसर इंचार्ज इसको रोटेट करता रहता है। इसके रिस्पेक्ट में ये रूल्स पैरा नंबर 62 में दिया है। वही फिर मैंने आपको बताया 500 से अगर कम है प्रॉपर्टी मलखाने में तो रिलीव भी किया जा सकता है। ठीक है, ये अंडर दिस सिस्टम द सेंट्री ऑन ड्यूटी will always hold token number 1, and this token will be given to the first sentry and passed on to the sentry on relief। ये सारी चीजें। सेंट्री ड्यूटी, गार्ड। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस अफसर घर में चले गए और पुलिस अफसर में ही छापा मार दिए। एक आदमी होना चाहिए भाई, प्रॉपर्टी रखी है थाने में, उसकी देखभाल, उसकी गार्ड करना, सेंट्री ड्यूटी। डिवीजन ऑफ पुलिस स्टेशन सर्कल इनटू बीट। अब पुलिस स्टेशन जो आता है सबसे नीचे बीट होता है, उसका डिवीजन बीट्स में होता है। उसमें बीट कांस्टेबल, इसीलिए आपको बोला जाता है बीट कांस्टेबल। डिवीजन ऑफ पुलिस स्टेशन सर्कल इनटू बीट एंड ड्यूटी ऑफ बीट कांस्टेबल। पुलिस स्टेशन सर्कल शैल बी डिवाइडेड इनटू बीट्स एंड 1 or more कांस्टेबल अपॉइंटेड टू ईच बीट। इसको बीट कांस्टेबल भी बोला जाता है। बीट कांस्टेबल के ऊपर थाने के अंदर बीट्स आते हैं,
और बीट को जो है, बीट में जो है ड्यूटी अपॉइंट होती है बीट कांस्टेबल की. A constable shall not be sent out unless charged with some specified duty, but when sent, he should be instructed to make inquiries on the way about absconders and so on. District police entitled to appear and to remain on railway platform. Para 64. डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, उनको रोका नहीं जा सकता. डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर एंटाइटल्ड व्हेन ऑन ड्यूटी टू अपीयर so they are entitled to appear and to remain on the platform of the railway station. Station master has no power to order the removal of district police constable who may on his way duty to the maybe on the duty at his railway station. So ये है कि जो है पुलिस ऑफिसर जो है स्टेशन पे भी जा सकता है, प्लेटफॉर्म पे भी जा सकता है देखने के लिए, फेंस ऑफेंस ना हो, उसको रोका नहीं जा सकता है. ओके. पैरा 64. चैप्टर 6 डील्स विद आर्म्ड पुलिस. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यहां पे अगर आप देखोगे आर्म्ड पुलिस, पैरा नंबर 65 टू पैरा नंबर 72. चैप्टर 6 आर्म्ड पुलिस क्या होता है? द आर्म्ड पुलिस आर इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेजरी, तहसील, लॉकअप, एस्कॉर्ट ऑफ ट्रेजर, प्रिजनर्स एस्कॉर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्विस ऑफ मैगजीन एंड क्वार्टर गार्ड, सप्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर एंड क्राइम्स ऑफ वायलेंस, एंड फॉर द परसूट एंड एप्रीहेंशन ऑफ डेंजरस क्रिमिनल. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द आर्म्ड पुलिस. इन सारी चीजों के लिए आपको ध्यान में रखना, बार बार ये चीज पढ़ना, ये सारे वर्क होते हैं आर्म्ड पुलिस के. दिस ब्रांच ऑफ द फोर्स is under the special charge of the DIG, who are responsible that superintendents maintain discipline and efficiency. SI of the armed police, उसकी वर्क क्या है, ड्यूटी क्या है, 66 में दिया है. इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ऑफ द आर्म्ड पुलिस कमांड इंपॉर्टेंट गार्ड, एस्कॉर्ट, मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द पुलिस लाइन, गिव इंस्ट्रक्शन इन ड्रिल, मस्केटरी, गार्ड ड्यूटी. हेड कांस्टेबल ऑफ आर्म्ड पुलिस वर्क्स एंड ड्यूटी. हेड कांस्टेबल जो है आर्म्ड पुलिस में, उनकी क्या है ड्यूटी? कमांड करना, गार्ड करना, एस्कॉर्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना ड्रिल में. ऑर्डर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट इन राइट और एफरे. पैरा 68. मैजिस्ट्रेट हु हैव ओकेजन टू गिव डायरेक्शन इन राइट और एफरे. जस्ट अ सेकेंड. Magistrates who have occasion to give directions in a riot or affray to police should communicate their orders to the police through the police officer in command. जो भी मजिस्ट्रेट है जो किसी भी डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन दे सकता है किसी राइट एफरे में, उसका कम्युनिकेशन किसके थ्रू आना चाहिए? जो पुलिस ऑफिसर इन कमांड है उसके थ्रू. डेपुटेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑन वेरियस ओकेजन. आर्म्ड फोर्सेज का डेपुटेशन जो है वो भी किया जा सकता है रिलीजियस प्रोसेशन में, सेरेमनी में. What are their respective duty? Duty of the superintendent to satisfy himself that the officers who will have control over or who will command the armed police are sufficiently responsible, they are sufficiently competent. ये superintendent ensure करता है. उनको various ceremony में accordingly depute किया जा सकता है. ये दिया हुआ है पैरा 69 में. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा नंबर 70 कि भाई आर्म्ड पुलिस जो है वो फोर्स कब यूज कर सकती है. इसके रिस्पेक्ट में जनरल डायरेक्शंस आपको पैरा नंबर 70 में दिया है. ये इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ फोर्स बाय द पुलिस अगेंस्ट द क्राउड आर एज फॉलोज. लीगल अथॉरिटी, चैप्टर 5 अगर आप देखोगे, चैप्टर 10 देखोगे ऑफ द CRPC, the legal provision relating the use of force by the police are contained in chapter 5, section 6 and 49, section 129 of the CRPC. These legal provisions apply to the use of force in the dispersal of an unlawful assembly. Unlawful assembly को भगाना है, disperse करना है, उसके रिस्पेक्ट में ये सारे जो है हैं आपके.
कब जो है लॉफुली वो फोर्स यूज कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स। एनी ऑफिसर और any officer in charge of police station or police officer of higher rank has power independently of the authority of the magistrate to call upon assembly as specified above to disperse action when attendance of magistrate cannot be secured। generally magistrate है, magistrate वो करता है, empowered है। magistrate नहीं है तो उस केस में कैसे ये पावर्स एक्सरसाइज की जा सकती हैं। मेन प्रिंसिपल्स गवर्निंग यूज ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन सी, पैरा नंबर 70 में सेक्शन सी कि फोर्स जो है पुलिस ऑफिसर वो कब यूज कर सकता है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल है। मैजिस्ट्रेट अगर है एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर शुड एक्ट थ्रू आउट इन कोऑपरेशन। दोनों जो है ऐसा नहीं आपस में ही मतभेद है, मैजिस्ट्रेट है और कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर है, दोनों कोऑपरेटिव वे में डिसाइड करना चाहिए उन्हें कि फोर्स यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए, डेंजर रिमूव करने के लिए। सारी जहां तक हो सके वार्निंग दिया जाए, एग्जॉर्टेशन दिया जाए, और अगर वार्निंग, एग्जॉर्टेशन और वार्निंग टू डिस्पर्स इसके देने के बाद भी अगर ये डिफाइड है देन फोर्स शैल बी यूज्ड। मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लाई करेगी, मैजिस्ट्रेट नहीं है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऊपर लाई करेगी। इफ मैजिस्ट्रेट The magistrate is present or if no magistrate present, senior police officer is responsible for seeing that the minimum force, generally usage of force के लिए magistrate की जरूरत है, लेकिन फोर्स मिनिमम फोर्स होनी चाहिए, ये इंश्योर करेगा पुलिस ऑफिसर ही, सीनियर पुलिस ऑफिसर। ओके, सो जहां तक हो गए वार्निंग दीजिए भाई, कोऑपरेशन में काम करिए, डिफाइंट है क्राउड तब फोर्स एक्सरसाइज करिए, और फोर्स एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो मिनिमम फोर्स एक्सरसाइज करो। Kind and duration of the force shall be subject to the reservation clause 7। जैसे ही ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, ऐसा नहीं कि क्राउड भाग गई, पीछे से दौड़ा दौड़ा मार रहे हैं। Once the object has been achieved, the use of force must cease। Rules governing the use of firearm, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन डी। ये तो फोर्स हो गया, लाठी चार्ज ये वो। अब फायर आर्म यूज करने के लिए क्या है डायरेक्शन, ये आपको सेक्शन डी में दिया गया। फायर शैल बी ओपनड ओनली इफ द मजिस्ट्रेट और इफ नो मजिस्ट्रेट प्रेजेंट, द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज डीम्स इट एब्सोल्युटली नेसेसरी। एब्सोल्युटली नेसेसरी है फायर करना। और क्या है एब्सोल्यूट नेसेसिटी? लाइफ या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जो है ये अगर ऐसी एब्सोल्यूट नेसेसिटी आ जाती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, देन इवन फायर में बी ओपनड, मैजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस ऑफिसर के रिस्पेक्ट में। मैजिस्ट्रेट इज प्रेजेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्डरिंग यूज ऑफ फायर आर्म विल रेस्ट विद हिम एंड ही विल डायरेक्ट द सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट टू ओपन फायर। लेकिन एक बार मैजिस्ट्रेट ने बता दिया ओपन फायर, तो कितनी राउंड फायर करनी है फिर मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी खत्म हो जाती है, वहां पुलिस ही बताएगी। When magistrate has ordered the senior police officer to open fire, he shall not fetter the discretion as the number of rounds to be fired. The order to stop firing shall be given by the senior police officer. Whenever firing has taken place, the senior police officer present shall, unless the duty is taken over by magistrate, record detailed information of the events that led to the firing. So उसका पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ता है, ऐसा नहीं फायर कर दिया और सब मैटर खत्म। उसकी जो है डिटेल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और क्या रीजन थे कि अल्टीमेटली फायर ओपन करना पड़ ही गया, ये सब आपको डिटेल करना पड़ेगा। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। व्हेन फायर इज ओपन, द सीनियर पुलिस ऑफिसर शैल डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम नेसेसरी टू बी इफेक्टिव इन सर्कमस्टांसेस एंड शैल अकॉर्डिंगली गिव प्रिसाइज ऑर्डर्स, एंश्योर दैट हिज ऑर्डर्स इज नॉट एक्सीडेड। द ऑब्जेक्टिव जो पुलिस ऑफिसर ऑर्डर कर रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव को क्लियरली मेंशन करना चाहिए उसे। फायर कभी हवा में और इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो क्राउड है वो और उसको बढ़ावा मिलेगा और उसका मन बढ़ेगा। आफ्टर द कमांड स्टॉप फायरिंग अनलोड, अ केयरफुल चेक शुड बी मेड ऑफ द फायर्ड एंड द मिसिंग कार्ट्रिजेस। और इन सब के लिए प्रॉपर ड्रिल, कांस्टेंट प्रैक्टिस ये पुलिस लाइन में दी जाती है। रिक्विजिशन ऑफ आर्म्ड पुलिस,
पैरा 71, रिक्वेस्ट करना कि आर्म्ड पुलिस दे दी जाए इन एक्सेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन इफ पॉसिबल। इसकी रिक्वेस्ट किसको जाती है? डीआईजी को। और 6 हफ्ते से एटलीस्ट टाइम होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, उससे 6 हफ्ते पहले ही आपको जो है रिक्वेजिशन डीआईजी को भेजना पड़ेगा। रिक्वेजिशन ऑफ आर्म्ड पुलिस, कॉन्स्टेबल्स ऑफ आर्म्ड पुलिस एज बाइसाइकिल ऑर्डरलीज टू द गवर्नर। 6 कांस्टेबल ऑफ आर्म्ड पुलिस आर सप्लाइड बाय द एसपी एज बाइसाइकिल ऑर्डरलीज टू द गवर्नर। गवर्नर के लिए क्या है स्पेशल इंतजाम? ये है आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व, रूल 73 चैप्टर 7 deals with armed training reserve. A reserve of armed police is maintained in every district. Time limit for the service in armed service, ये रोस्टर वाइज होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में आर्म्ड पुलिस की रिजर्व मेंटेन होनी चाहिए और स्ट्रेंथ उसका फिक्स होना चाहिए। और इसमें जो ड्यूटी है वो रोस्टर वाइज, रोटेशन वाइज लगती रहती है, 2 महीने से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लिमिट्स ऑफ लीव ऑफ द मैन इन द आर्म्ड रिजर्व, रूल 75 बताता है। डेपुटेशन ऑफ आर्म्ड पुलिस फॉर स्पेशल ड्यूटी, इनको डेपुटेट किया सकता है स्पेशल ड्यूटी के लिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ड्यूटीज फॉर द नंबर ऑफ रिजर्व, मेंबर ऑफ रिजर्व जो है नॉट बी एम्प्लॉयड ऑन रूटीन ड्यूटी सच एज गार्ड ऑफ एस्कॉर्ट ड्यूटी अनलेस द ओकेजन इज अर्जेंट, रूल नंबर 77। मेंटेनेंस ऑफ आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व, आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व मस्ट इन ईच पीरियड ऑफ ट्रेनिंग be put through a complete course in drill, musketry, observation, relevant training उनको देनी चाहिए, रूल 78 में बताया है पैरा। चैप्टर 8 माउंटेड पुलिस, आर्म्ड पुलिस हो गया, आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व हो गया। चैप्टर 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, माउंटेड पुलिस। यहां आप देखोगे रूल नंबर 79 to 88 डील्स विद माउंटेड पुलिस। माउंटेड पुलिस मतलब क्या? जो घोड़े जिन्हें मिले हुए हैं। द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द माउंटेड पुलिस: फुट सोल्जर and that police personnel that have been mounted. So following are the duties prescribed for mounted police. Rule 79, पेट्रोलिंग करना, एस्कॉर्टिंग करना, कन्वेइंग कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल अर्जेंसी, फॉलोइंग अप क्रिमिनल। तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट यही था, ऑन फुट है या व्हीकल या घोड़े पे है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। भाई घोड़े कहाँ आपने देखे होंगे कि पुलिस जो है घोड़े से चल रही है, लेकिन है उसमें होता है स्पेसिफिकली हॉर्सेस मेंटेन किए जाते हैं, और पुलिस रेगुलेशन में आपको बताया भी है कि उनके रिस्पेक्ट में, हॉर्सेस के रिस्पेक्ट में उनका स्पेसिफिक ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर यहाँ पे दी हुई हैं। तो ड्यूटीज़ क्या होती है माउंटेड पुलिस की? पेट्रोल करना, एस्कॉर्ट करना, कम्युनिकेशन कन्वे करना, क्रिमिनल्स को फॉलो करना, ऑर्गेनाइज डेकोइटी है उसको सप्रेस करना, सेरेमोनियल एस्कॉर्ट। सेरेमोनियल एस्कॉर्ट आप देखोगे अभी भी घोड़े यूज होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ माउंटेड पुलिस। 2 माउंटेड ऑर्डरलीज आर अलाउड टू ईच मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये सब है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी दे दिया गया माउंटेड पुलिस। Formation of mounted police are formed into the troops at certain headquarters. They are required to keep a thorough knowledge of the duty contained in para 84 and 85. Duty of SI and head constable in mounted police. 81. क्या है इनकी ड्यूटी? Are similar to those of the Indian officers and non-commissioned officers in the army. They must be competent cavalry drill inspector and are responsible for the efficiency of men and horses in their troops. Roster of duty at troop headquarter. At troop headquarter, the RI shall keep the roster of duty. Inspection before forces deputed to other district. 83. The SP at the troop headquarter will have all forces deputed to other district carefully inspected. किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो SP जो है प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा भेजने से पहले। ट्रेनिंग ऑफ माउंटेड पुलिस इंपॉर्टेंट, 84 एंड 85। 2 साल का ट्रेनिंग होता है, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट दिया जाता है।
उसमें आप पास करोगे, फिर आगे एडवांस ट्रेनिंग में जाएगा। ये मैटर सारा 84, 85 एंड दीज they are again all mounted police recruits including men transferred from foot police will be trained in accordance with and will be on the probation for 2 years and then iska duration kya hai, it will be confirmed at the end of the probationary mounted constable confirmed kar diye jate hain if they have succeeded in qualifying at the recruit course of instruction. They must be so trained that they can ride well and handle the horse, can saddle and unsaddle the horse properly, that they are proficient both mounted and on foot. Other training of the members of the mounted police, 3-month advance course का है for selected constable, para number 86. ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप हॉर्स, जो हॉर्स है उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हॉर्स ही गिर गया, दे रहे हैं उधर, भाग रहा है उधर। ट्रेनिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस with the sanction of IG previously obtained, members of the force may occasionally be sent to the veterinary school. Chapter 9 आपका हो गया village police, watch and ward of the villages in his charge, para number 89. Tracing offender, making arrest, he is responsible, reports the DM for due performance of his duty. फ्री शिप क्या है चौकीदार को, कल्टीवेशन अगर कर रहे हैं विलेज में उसके लिए कोई बार नहीं है। अटेंडेंस मस्ट अटेंड एट द पुलिस स्टेशन। क्राइम रिकॉर्ड बुक ऑफ द विलेज चौकीदार, एवरी पुलिसमैन शैल प्रोवाइड अ क्राइम रिकॉर्ड बुक, अटेंडेंस बोर्ड क्राइम रिकॉर्ड बुक मेंटेन करता है। असिस्टेंस फॉर एस्कॉर्ट ड्यूटी बाय द विलेज पुलिस, एस्कॉर्ट ड्यूटी वहाँ असिस्ट करेगा। रूल्स फॉर वॉच एंड वार्ड ऑफ कैंप्स ऑफ ऑफिसर्स ऑन टूर, नंबर ऑफ चौकीदार क्या है, कितने समय तक काम करेगा, स्पेशल अलाउंस क्या है, ये सारी चीज़ें। रूल्स फॉर द वॉच एंड वार्ड ऑफ द कैंप्स ऑफ ऑफिसर्स ऑन टूर। IG ऑफ द पुलिस कैन क्रिएट टेम्पररी पोस्ट ऑफ चौकीदार, विलेज चौकीदार। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड फॉर्म्स फॉर रिटन रिपोर्ट्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विलेज चौकीदार, 95 पैरा। अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज चौकीदार अपॉइंटेड बाय द DM, रूल 96 पैरा 96। 96 से आपको देखो प्रोविजन ऑफ द पैरा 50R एप्लीकेबल टू विलेज चौकीदार, ये हो गया। तो पार्ट 1 फिनिश हो गया यहाँ से। पार्ट 2 आपका पर्टिकुलर ड्यूटी है, थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। पर्टिकुलर ड्यूटीज आप देखोगे चैप्टर 10, रिपोर्ट्स मेड एट द पुलिस स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट हुई है FIR NCR, उसके रिस्पेक्ट में क्या रेगुलेशंस हैं। चैप्टर 10 अगर आप देखोगे 97 पैरा नंबर, प्रोसेस फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में और क्या डिटेल रेगुलेशन दिए हुए हैं इस रेगुलेशन में। ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होना चाहिए, किसको किसकी कॉपी देनी चाहिए, एक कॉपी कहाँ जाएगी, एक कॉपी कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन्ड है। रिपोर्ट विल बी, ऐसा कोई भी कमीशन हुआ कॉग्निजेबल ऑफेंस का, then it will be taken down in triplicate form, कोई डिले नहीं होना चाहिए। Even if it appears untrue, the report must be recorded at once. अगर orally दी गई है information तो must be taken down, read over to the informant, must sign 3 parts में, साइन करे, थंब इंप्रेशन डाले, मार्क अफिक्स करे अपना। देन सारे तीनों पार्ट जो ट्रिप्लिकेट कॉपीज है, तीनों में ऑफिसर इंचार्ज वो साइन करेगा। एक कॉपी उसमें डुप्लीकेट कॉपी उसको दे दी जाएगी, एक कॉपी जो है सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी थ्रू द सुपरिटेंडेंट। ओके, ये सारी चीजें हैं। डिलेइंग द FIR शुड बी डिस्करेज्ड, इमीडिएटली होना चाहिए। एंट्रीज ऑफ क्राइम इन रजिस्टर एंड डायरी शुड बी क्लियर। इट इज एसेंशियल दैट ऑल रिपोर्ट्स एंड एंट्रीज इन द रजिस्टर एंड डायरी शुड बी रिटन क्लियरली एंड लेजिबली। 98, 97 हो गया, 98 हो गया। 99, जो भी FIR का सब्सटेंस है वो GD में उसकी एंट्री होनी चाहिए। सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी ब्रीफली रिकॉर्डेड इन द GD इवन इफ द रिपोर्ट इज रिसीव्ड एट नाइट। देन
पैरा 100, प्रोसेस ऑफ ओरल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू स्टेशन ऑफिसर। स्टेशन ऑफिसर को अगर दी गई हो और वो स्टेशन पे नहीं है, कहीं और है, उसके रिस्पेक्ट में अगर वो उसको इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है तो कैसे करेगा? स्टेशन में नहीं है, उसे बोलेगा भाई लिखित में दे दो, साइन करा लेगा। Then he should send it to the police station to be treated as written report. Para 100. Special report cases wherever the occurrence of an offense in any of the following kind is reported. Special report cases हैं ये 101 में। Dacoity, robbery, torture, escape, forging currency note, manufacture counterfeit coin, hundi के related important case of murder, writing and so on. Copies of the report will be sent immediately in red envelope to the superintendent, DM, SDM and the circle inspector by the post or hand, whichever may be the quicker method of conveyance. Okay. Copy of special report to DM and SP. Copy of report be sent to DM, SP in all important cases. Process for report of non-cognizable offense. ये cognizable था, अब non-cognizable आया. The important portion of the report should be recorded in check receipt book for report of check receipt book for report of NC, non-cog cases, non-cog offenses. The informant should be required to sign or affix the mark. इसकी डुप्लीकेट कॉपी में बनती है, एंट्री जीडी में कर दी जाती है, 102 में बताया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसओ फॉर करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ रिपोर्ट्स, ये एसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैप्टर 11 आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन है। पैरा 104 डिसीजन of investigation or report of cognizable offenses. When a report of cognizable offenses is received, the officer in charge of the station must decide whether an investigation is desirable or not. ये ऑफिसर इन चार्ज ही डिसाइड करेगा 104 में। No investigation should be made if the subject matter of the complaint appears to fall within the scope of 95. Trivial matter है। No investigation should be made in the following circumstances, except SP order कर दे। petty case 324, 325, 147, ये सब IPC के सेक्शन है। In all cases of hurt inflicted with a deadly weapon, the officer in charge of the station should consider whether the circumstances are such as to justify the registration of case under 307 और 308। ये सारी चीजें हैं। Process when a cognizable case will not be investigated. When officer in charge of police station decides that the cognizable case will not be investigated, then what is the relevant course he has to follow? Enter on the original triplicate copies of the FIR for his reasons for not investigating the case. रीजन बताना पड़ेगा क्यों भाई नहीं कर रहा है। He must also note on the duplicate copy which will be given to the person who has made the report the fact that no investigation will be thereon taken in such case. पैरा 105। पैरा 106 completion. Investigation should ordinarily be carried out and completed on the spot, except in cases falling under 157 of CRPC. Duties of an investigating officer, पैरा 107। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कोई मेयर क्लर्क नहीं होता है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होता है, सिचुएशन को इन्फर करना होता है। he makes his expert observation, he applies his mind, he studies the methods of crime that have been committed in that local area, the local offenders that they are do, and it is the duty to find out the truth, and not he must prematurely commit himself to any view of the facts for or against any person. He must give all the opportunities which are necessary for producing any person relevant evidence. So these are important duties of investigating officer which have been covered under para 107. Steps for investigating officer to investigate the case, para 108। केस डायरी में नोट करना, then time and place which have received the information accordingly 172 में जो दिया है वो सारी चीज करके, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है उसका डेट, टाइम, प्लेस,
सीन इंस्पेक्ट करना। 109 में अकॉर्डिंगली एंट्री, केस डायरी में जो एंट्रीज हैं वो हैं, कोई वेरिएशन है स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड किया जाएगा, अकॉर्डिंगली केस डायरी में चीज़ें एंटर की जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन must be recorded in full. Diary must be sent daily to the superintendent. If more offences than one are of the कोई और ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी कर रहा है, then if more officers than one are investigating the case independently at the same time, each should keep a separate diary. ये सारी चीजें। Proceedings after arrest of a suspected person, पैरा 110। सर्च कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, पैरा 111। किसी प्लेस में एंटर करने से पहले उसको क्या कंडीशन ये फॉलो करनी है। ही बिफोर एंटरिंग द प्लेस टू बी सर्च्ड ही मस्ट सेटिस्फाई द ऑक्यूपायर एंड द विटनेस कॉल्ड अंडर सेक्शन 100 that neither he or nor any member of the search party including the informer present has anything incriminating। ये सारी चीजें हैं। Inquiries from a person from whom inquiries are made by the police should not be unnecessarily harassed or detained. This has been given under para 112। Inquiries from public or railway servant, कोई रेलवे सर्वेंट है या पब्लिक ऑफिशियल है, उससे कोई इंक्वायरी करनी है तो पुलिस ऑफिसर को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस उनके काम में एज लिटिल एज पॉसिबल हो। पैरा नंबर 113। पुलिस ऑफिसर शुड अटेंड द कोर्ट ऑन डेट्स फिक्स्ड फॉर देयर अपीयरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अकॉर्डिंगली एक रजिस्टर भी मेंटेन करता है, उसमें सारे ऑफिशियल्स के नाम रहते हैं। अगर पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर कोर्ट में नहीं विजिट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, देन उसके रिस्पेक्ट में सारी रजिस्टर जो है एसपी के पास होती है, एंड ही में कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो व्हाई दे डिडंट अपीयर इन द कोर्ट फॉर एविडेंस। प्लान ऑफ द सीन ऑफ अकरेंस शुड बी मेड बाय द आईओ। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस जैसे इंपॉर्टेंट बर्गलरी हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, तो उसमें जो क्राइम सीन है उसका पूरा प्लान, उसका सीन ऑफ अकरेंस ये पूरा बनाना पड़ता है। पैरा 114 में दिया है। 115 में डाइंग डिक्लेरेशन of seriously injured person to be recorded immediately। मरने वाला है, तुरंत उसकी डाइंग डिक्लेरेशन चाहिए, तो जो है 2 विटनेस के साथ सिग्नेचर लेके डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। 116 आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड के रिस्पेक्ट में 116 में रूल दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट टेक स्टेप्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन। एकदम शुरुआत से उसको ध्यान रखना है कि भाई कोई अक्यूज्ड अगर है और कोई विटनेस है, उसका अगर आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है तो ऐसे अक्यूज को मत रख दो कि भाई पहले ही सब लोग पहचान लें कौन है। आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का कोई मतलब ही नहीं है फिर। विटनेसेस आर गिवन नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग द सस्पेक्ट। ओके, सिमिलरली ये हो गया सस्पेक्ट्स के केस में। प्रॉपर्टीज के केसेस में भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, पैरा 117 में दिया हुआ है। उसमें कोई सिमिलर प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, किसी प्रॉपर्टी का आइडेंटिफाई कराना है, उसको उसके साथ मिक्स करके उसको दे दिया जाएगा कि जो पर्सन है जो क्लेम कर रहा है या कोई विटनेस है वो आइडेंटिफाई करो। किसी ने बताया कि भाई ये प्रॉपर्टी इससे या कोई वेपन है उससे हुआ था, तो क्या आप पहचान सकते हो? उसको सफिशिएंटली उसको मिक्स करके उसके सामने रख दो कि भाई पहचानो इसमें कौन सा चीज था, तो बताएगा कि हाँ ये वाला चाकू था। Cognizable offense done by a person in state of mind get no relaxation by the police in a second state of mind. When it is established that a person who has committed an act which would be a cognizable if done by a person in second state of mind, मतलब इंसेन पर्सन के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो पुलिस का ये काम नहीं है डिटरमाइन करना whether a defense on the ground of insanity is made out or not। ये पैरा 118 में दिया हुआ है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी उसका मेंटल कंडीशन। ये डायरी में आप बस एंटर कर दिए। प्रोसेस फॉर कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, पैरा 119। मजिस्ट्रेट शुड बी आस्क्ड टू पुट क्वेश्चन
to the person making it with a view to eliciting as many details as possible. Unless independent corroborative evidence can be obtained, then it will be of little use. Who can record the evidence? Every confession which a person in police custody wishes to make shall be recorded by the highest magistrate. Remand for police custody. Para 121. Remand to the police custody should not be applied for or given unless the officer making the application is able to show definite and satisfactory ground. General statement that the accused may be able to give further information should not be accepted. Application for remand to the police custody must be made through SP or gazetted police officer in charge of the subdivision. ठीक है, application for remand SP के through आती है. Completion of investigation and submission of final report और charge sheet. Para 122. As soon as possible जो है ये होना चाहिए. Charge sheet with the final diary in all the cases should be submitted to the court through circular officer and the public prosecutor. यहाँ आपको ध्यान रखना है. 173 में ध्यान रखें completion of the investigation as far as possible. जो भी time limit दी हुई है उसके according जो है वो करते हुए किसके थ्रू जाएगा? सर्कल ऑफिसर एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड शुड रीच द कोर्ट विद इन 4 वीक्स. 4 वीक और 8 वीक ये ध्यान रखना. यहां से क्वेश्चन बन सकता है. पैरा 122 में दिया हुआ है. शुड इसमें पैरा 122 में क्या दिया हुआ है? 4 वीक्स ऑन द डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ द FIR इन समन एंड वारंट केस, 8 वीक इन सेशन केस. इसके बीच में आपको चार्जशीट विद द फाइनल डायरी इन द केसेस शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट. ये ध्यान रखना. As soon as possible, but in any case not later than a month of the expiry of each quarter, the SP shall submit to the DM in the prescribed form in duplicate a quarterly list of cases in which charge sheet could not be submitted within prescribed time. और charge sheet अगर सही टाइम पे आप नहीं दे पा रहे हो तो उसकी प्रॉपर लिस्ट बना के उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे के SP को जो है DM को रिपोर्ट देनी पड़ती है. Previous conviction should be recorded in charge sheet. Para 123. 124 deals with complaint of cognizable or non-cognizable offense before the magistrate. Okay. 202 का ध्यान रखते हुए 200 का ध्यान रखते हुए when any complaint of offense cognizable or non-cognizable of which a magistrate has taken cognizance is referred to him under 202, the officer in charge of the police station of the subdivision must satisfy himself before forwarding the complaint to the police station concerned that the provision of 200 and 202 of the CRPC have been fully observed. 124. 125. Process of investigation when an Indian is killed by the British soldier. 125. 126. No analysis of the work of the investigation officer. Investigation officer कोई भी काम किया है इसका statistical analysis नहीं किया जा सकता है. Manner in which they have performed their work, इसका एनालिसिस आप कर सकते हो. कोई स्टैटिस्टिकली आप इसको नहीं डिफाई करके स्टैटिस्टिकली आप इसको नहीं एग्जामिन कर सकते हो. प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द पोस्ट ऑफिस बिफोर द पुलिस. पोस्टल डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्या है? प्रोसेस व्हेन देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ थेफ्ट फ्रॉम गुड्स ट्रेन इन एनी लोकेलिटी इन विच देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ थेफ्ट फ्रॉम गुड्स ट्रेन, द SP ऑफ द गवर्नमेंट रेलवे विल इन्फॉर्म द SP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. सो ये हो गया until para number 128. From tomorrow onwards, we'll continue from chapter 12. Okay, thanks.